ہمارے ساتھ اس کو میدان جنگ مت بناؤ، میدان جنگ مت بناؤ، مت چھیڑیں آپ۔ بنگلہ دیش سے سبق لیں۔ یہ حکومت ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، شرم آنی چاہیے تم کو، شرم آنی چاہیے۔ اگر کوئی مرد کا بچہ ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، شرم آنی چاہیے۔ طاقت، اصل طاقت اس ملک کے وکلا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم وکلا ایک طاقت ہے اور ہم نے ثابت کیا ہے، ثابت ہم نے کیا ہے کہ اس ملک میں ہم ایک طاقت ہے۔ یہ وکلا جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ گلگت اور چترال، اونچے پہاڑوں سے لے کے کراچی تک، جس میں کوئٹہ، بلوچستان، تربت، گوادر، یہ سب شامل ہے۔ ہم طاقت ہیں، ہمارے ساتھ یا ہمارے ساتھ اس کو میدان جنگ مت بناؤ، میدان جنگ مت بناؤ۔ ہم وکلا ایک آدمی نہیں ہے، ہم وکلا ایک طاقت ہے، اور جب یہ طاقت کا، یہ جب وکلا کا طاقت کا سیلاب جب باہر نکلے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم صرف طاقت میں یقین نہیں رکھتے، صرف ہم طاقت میں یقین نہیں رکھتے، ہم آئینی اور قانونی طاقت میں یقین رکھتے ہیں۔ مگر جب ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہر وقت ہم کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہمیں میدان جنگ میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ ضیاء الحق سے زیادہ بدترین آدمی میں نے ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور مجھے فخر ہے اسی لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں وکلا ہی تھے سب سے پہلے جنہوں نے اس ضیاء الحق کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا تھا، اور وہ ضیاء الحق کے خلاف نیلا گنبد تک یہ وکیل نکلے تھے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو جو ہے کوئی احساس ہوا کہ اگر وکیل نکل سکتے ہیں، پھر سیاسی جماعتوں میں ہلکی کم یا زیادہ جنبش ہوئی، اور وہ ہم نے سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا۔ دنیا بدل گئی ہے، بنگلہ دیش سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ صرف سٹوڈنٹس نکلے، سٹوڈنٹس جو آرگنائز نہیں ہے، جو کسی ڈسپلن کے اس میں نہیں ہے۔ ہم وکلا آرگنائز ہیں، ہم وکلا ایک ڈسپلن کے تحت ہیں۔ جہاں ڈسپلن ہے، جہاں آرگنائزیشن ہے، طاقت بھی وہیں پہ ہے۔ مت چھیڑیں، مت چھیڑیں آپ۔ بنگلہ دیش سے سبق لیں۔ یہ حکومت ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو، شرم آنی چاہیے۔ جن کو امینڈمنٹ تو نظر آتا ہے، جن کو صرف اس بات پہ غم اور دوسرا غصہ ہے کہ کیوں منصور علی شاہ آ کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن رہا ہے، تم کو اس وقت شرم نہیں آتی ہے، اس وقت تم کو خیال نہیں آتا، حالانکہ تم اس ملک کے حکومت کے دعوے دار ہو، غلط دعوے دار ہو، جعلی دعوے دار ہو، اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، سب کو پتا ہے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، شرم آنی چاہیے۔ اگر کوئی مرد کا بچہ ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اس ملک میں 18 کروڑ سے زیادہ لوگ، 18 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت نہیں، میں غربت نہیں کہتا، غربت تو پھر بھی ایک رسپیکٹیبل لفظ ہے۔ افلاس میں
अफलास में जिंदगी गुजारे, 11 करोड़ से ज्यादा। ये दुनिया की इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट है। वहां जब लोग भूख से और अफलास से जब लोग मरते हैं, उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जाग उठती, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चलता। मैं सारी जिंदगी मैं उस पंजाब की खातून को नहीं बुला सकता, खुदा की कसम नहीं बुला सकता, और सारी जिंदगी नहीं बुलाऊंगा, जिसने महज गुर्बत की वजह से अपने छोटे 2 बच्चों को अपने बाजुओं में लेके नहर में कूद कर जो अपनी जान दी। कहां गई वो हुकूमतें? और उसी किस्म की गरीब लोग इस मुल्क में 11 करोड़ की तादाद। रात की ताराकी जब सूरज डूबता है, जब रात नमूदार होती है, जब रात की नमूदार होने से तारीकी पैदती है, तो वो खुदा की रात की तारीकी गरीब और अफलास शुदा घर में बाद में पहुंचती है। पहले गुर्बत का अंधेरा उस घर में पहले से मौजूद होता है। शर्म आनी चाहिए था। इसी पंजाब में एक शख्स ने यही गुर्बत और अफलास के झगड़ों की वजह से अपने 4 साल के बच्चे से लेके 8 साल के बच्चे तक और 7 बीवी को भी गुर्बत और अफलास की वजह से चाकू से खंजर से काट के ज़बह किया। किसी का ज़मीर नहीं जागा, किसी के दिल में कोई दुख नहीं हुआ, किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि ये लोग भी इस मुल्क में जो 11 करोड़ लोग हैं उनका सोचो। असल डरो उस वक्त से ये 11 करोड़ अवाम, अगर ये 11 करोड़ अवाम को कोई लीडर मिल गया तो दुनिया के सारे इनकलाब लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान का गरीबों का इनकलाब सबको याद रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मुल्क को मजाक बनाए हुए, अपनी बाप की जागीर बनाई हुई है। बाप की जागीर है ना। एक खानदान 50 साल से हमारे ऊपर हावी है, दूसरा खानदान भी 50 साल से हावी है, तो जागीर इससे ज्यादा और क्या होती है? क्या है जागीर और क्या है इससे ज्यादा? सारे लोग मेरे नजदीक 9 सरबाज लोग हैं, 9 तो 11 लोग हैं। सारे 9 तो 11 बैल हैं और एक अकेला बंद है। मत करो। जमहूरियत है तो पूरी जमहूरियत होनी चाहिए। बाप की जागीर मत बनाओ इसको। और अगर बाप की जागीर बनाने का तुमने सोच भी रखा है तो हमारे कसम खाते हैं। हमारा कसम वो तुम्हारा हल्फ नहीं, हमारा कसम तुम्हारा वो हल्फ नहीं जो तुम सुबह शाम उसको तोड़ते हो। हमारी कसम है कि जिस दिन तुम इस पे आओगे और ये अमल उठाओगे, ये वकीलों का सैलाब तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और फिर हमें तारीख ये मौका दे रही है, जितने कायदीन बैठे हैं, हमारा आपसे वादा है, ये कसम है हमारा आपसे कि हम पहली सफ में होंगे और सबसे आगे होंगे। जो होगा देखा हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, जमहूर बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो।
बचाने निकले हैं। हम हक मैं- बचाने निकले हैं। हम वकील सिर्फ एक ऐसा तबका है, हम में कभी किसी वकील ने ये नहीं कहा कि मैं बलोच हूँ, वो पंजाबी है, वो पठान है, वो सिंधी है, वो सराइकी है, वो हज़ारा है, वो क्या है। यही हमारी ताकत का सीक्रेट, हमारी ताकत का यही है। तुम में हर आदमी तफरीक शुदा है, तकसीम शुदा है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई तुम में ज़मीर है, अगर तुम्हारे अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत है। 2007 में मैंने एजेंसियों का सेल देखा है, इतना छोटा सा एक सेल है, उसमें आदमी या तो सो सकता है, लेट सकता है, और मेरे ख्याल में जो कि मैंने देखा है, सिर्फ 4 कदम अगर वो चाहे तो 4 कदम फिर से है। तुमने बलूचिस्तान के 2000 लोग, ये मैं नहीं कहता हूँ, एक बहुत जिम्मेदार कौमी असम्बली के मेंबर ने कहा, एक बहुत जिम्मेदार पाकिस्तान बलूचिस्तान की एक अहम तरीन पार्टी के लीडर ने कहा है कि 2000 आदमी तुमने कई सालों से बंद किए हैं, और फिर तुम कहते हो हम मुल्क चलाएंगे। मैंने बार बार कहा, मैं फिर कहता हूं, बैसियत उस इलाके के जिसमें मैं रहता हूं, बैसियत उस जुबान के जो मैं घर में बोलता हूं, बैसियत उस हवाले से जो मैं समझता हूं कि मैं हूं, बहुत वाज़ेह अंदाज में कहता हूं। जिन्होंने कान बंद किए, कान खोल कर सुन लें। बलोच की नफ्सियात को सिर्फ और सिर्फ एक बलोच समझ सकता है, कोई माई का लाल। 10 आप थिंक टैंक बिठा ले, 10 आप थिंक टैंक बिठा ले, और उनके एनालिसिस की बुनियाद पे, उनके असेसमेंट की बुनियाद पे तुम अगर बलूचिस्तान को चाहोगे कि तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, सारी क़यामत तक नहीं कर सकते हो। मैं बैसियत बलोच के कहता हूँ, और मैं समझता हूँ बलोच की नफ्सियात को सिर्फ बलोच समझ सकता है। ये मैं कह सकता हूँ, थिंक टैंक वाले जो माहिरीन है वो नहीं कह सकते कि एक बलोच किस अमल के मुकाबले में, किस एक्शन के मुकाबले में क्या रिएक्शन करेगा, कब करेगा और कितना शदीद करेगा। समझो, बलूचिस्तान कोई तुम्हारी जागीर नहीं है कि तुम चाहो और उसको आगे, बकरी का बच्चा नहीं है आगे बढ़ के तुमने उसको पकड़ लिया है। अब भी तुमको मैं समझाता हूँ, अकल के नाखून